I also welcome our coordinators, teachers, and dear students. You might be wondering why do students need financial literacy? Well, the truth is financial literacy is not just about handling money. It's about building the right habit, saving, budgeting, avoiding unnecessary expenses, and learning how to plan ahead. We all dream of becoming successful professionals someday, but along with earning money, it is equally important to know how to manage it wisely. And today's workshop is here to teach us that. We are truly honored to have with us experts from SBI, India's most trusted bank, who will guide us in understanding how to make smart financial choices. On behalf of our school and all the students present here, I extend a warm welcome to our respected speaker, Mr. Deepak, AGM SBI Bank, Mr. Arif, AGM SBI, Mr. Ankur, CM SBI, and Mr. Amit Shrivastava from Private Limited. In today's fast-moving world, being financially literate is not just an option, but a necessity. Understanding savings, investment, banking, and value of money helps us make wise choices for a secure future. Dear students, this is going to be an interactive session, so feel free to listen carefully, ask questions, and make the most of this opportunity. So without taking more time, let me invite our respected speaker, Mr. Deepak, AGM SBI, to take over the session. Thank you, ma'am. Good morning, everybody. Good morning, respected teachers, my colleague from State Bank and Pension India. Okay, before starting this particular seminar on financial guide, let me ask you people, you are comfortable with Hindi English? Yes. English is also okay? So we will be mixing tones as such, English as well as Hindi, as well as whenever like say requirement arises. ठीक है, financial literacy से आप लोग क्या समझते हैं? कोई भी बताएगा? What do you mean by financial literacy? Anybody raise your hand and we can discuss properly. It's not a class, so whatever you are doing, kindly tell. Anybody? Financial literacy, yeah, please. I think it means managing money wisely, like by investing and how to spend, where to spend. Okay, very much correct. It's all regarding like how we are managing our finances. By finance, what we mean that we all of we people we get the pocket money. Okay, pocket money मिलता है तो उसमें से कितना proportion हम लोग खर्चा करते हैं, कितना proportion हम बचाते हैं, ये हम लोग के लेवल पे this is only the financial literacy as such. ठीक है, तो और literacy का main purpose क्या है कि जो जैसा कि मैं वो चले कि हम सेव करें जिससे कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो. It's not about कि अभी कैसे खर्चा करना है कैसे नहीं करना है. We are saving 100 rupees. How we can save a portion of that particular rupee in order to save our future as such. This is so financial literacy is a kind of tool जो हमको इस चीज में help करता है. So this is called financial literacy. Now moving sir. अच्छा, so I will be discussing first with what is the agenda for the meeting, what is interaction. First we will be seeing what is the money, what I will be defining as such. Then financial literacy. अपना इंट्रोडक्शन देंगे हम आवर प्रोडक्ट एंड देन क्वेश्चन आंसर सेशन जिसमें हम लोग काफ़ी चॉकलेट्स लेके आए हैं. ठीक है, तो मनी. ओके, नाउ आई विल बी आस्किंग व्हाट इज मनी. पैसा क्या होता है? प्लीज. Medium of exchange, store of value, measure of value is money. Oh, my friend has said that's correct. It's a kind of if I paraphrase in a very simple way, it's a medium of kind of value that we exchange from some other person. तो क्या जब हम स्टार्ट किए थे मनी की बातें हम लोग स्टार्ट किए हैं, क्या मनी हमेशा से पेपर के फॉर्म में थी? शुरू से किस फॉर्म में थी वो बताएगा? So I am having the informed audience. ठीक है, तो earlier it was a barter system. barter क्या था? एक हाथ ले दूसरे हाथ ले, करेक्ट? कि हम आपको अनाज दे रहे हैं, आप मुझे सोना दीजिए, या मैं आपको सोना दे रहा हूँ, आप मुझे अनाज दीजिए. सारी कंट्रियों से हमारे ट्रेड ऐसे ही होते थे. बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, गल्फ साइड से आ रहे हैं, सिल्क रूट से आ रहे हैं, पर्शियन रूट से आ रहे हैं, या यूरोपियन रूट से सी वे के थ्रू आ रहे हैं. हमारे यहाँ से कुछ ले जाएंगे, हमको कुछ दे जाएंगे. दैट इज कॉल्ड बार्टर. ठीक है, अब बार्टर के बाद मुझे एक बार बताएं, जैसे कि हम लोग नोट पे शिफ्ट किए, वी शिफ्ट टू द नोट. तो वाई लाइक एनी दिस कैन नॉट बी नोट.
Why? Why note is not? It is not authorized by the central bank. Anybody raise your hand and speak? Yeah, you. Please stand. So there is a technical term because you people are like, I believe that you are having the knowledge. It's called fiat money. Okay. तो इस जैसे लिखा नहीं था, मैं धारक को इतना रुपए देने का वचन देता हूँ, 100 रुपए देने का वचन देता हूँ. इसका मतलब क्या होता है? मैं बेयर को आई प्रॉमिस टू पे बेयर सच एंड सच. कौन बोलता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर. उनको पावर कहाँ से ड्रा होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट से. उनको रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट में किसने अथॉराइज किया? इंडियन गवर्नमेंट ने. तो आपका आंसर सही है, क्योंकि सरकार बोलती है कि जो पैसा आपके हाथ में है ये मनी है, इसलिए हम मानते हैं कि मनी है. ठीक है. किसी ने इनविजिबल मनी के बारे में सुना है? इनविजिबल मनी जो है नहीं आता. एनीबडी? करेक्ट. क्रिप्टो. तो बहुत सिंपल हम कुछ बना के लाए हैं यहाँ पे. टफ कुछ चाहिए था. तो पीपल आर अवेयर क्रिप्टो मनी ये सबसे लेटेस्ट फॉर्म है. अभी जर्नी देखेंगे जिसमें बार्टर से लेकर क्रिप्टो तक की पूरी जर्नी दिखाई गई. हाउ द मनी इज मूव starting from the simple अनाज like धान गेहूं जो कर रहे हैं till the cryptocurrency what the lady was telling. Okay, so cryptocurrency is generally is a kind of medium of exchange in which two people are agreeing to buy or sell or take it, exchange it without any sovereign guarantee. What is sovereign? Belonging to a particular nation. Yes, sovereign means जिसको कोई गवर्न न कर सके. जैसे हमारे लोग नहीं बोलते हैं कि ऐसा ये रिजर्व बैंक इंडिया एक सॉवरेन एंटिटी है, तो उसको कोई गवर्न नहीं करता. उसका अपना काम है, वो अपना काम करेगा, उस पर किसी का जोर नहीं चलता. जैसे इंडियन गवर्नमेंट पे किसी का जोर नहीं चलता. वी आर सॉवरेन नेशन, so irrespective of whatever the policy Trump is making, it's not going to hinder our path. Okay, so that's how the letter says. ठीक है सर, चलें. Okay, just can you watch this? There was barter, a system in which people simply exchanged what they wanted with what they had. This simple trade of goods led to an immense increase in specialization, economic growth, and wealth. To find each other and exchange what they had for what they needed, people formed markets. To ensure their produce could be trusted, they later invented brands. But there was a problem. Barter is based on a double coincidence of wants, which means that people who wanted each other's stuff also had to find each other. In a world without forms of telecommunications, this wasn't easy, and as a result, they often had to go an extra mile to find their luck. Around 3,500 years ago, someone came up with the idea to weigh products in the form of rare metals, and gold and silver became a medium of exchange. This was possible because there was a shared belief that gold was as beautiful as it was scarce. Gold allowed us to replace barter and make and sell things, and then save the income of our earning. The ability to store value was born. This meant we were able to take the earnings of our work into the future, which led to an immense increase in innovation and specialization. Trade exploded, and as a result, a lot of wealth was created. Around 1,000 years ago, some smart businessmen realized that trust itself was as good as gold. In exchange for goods, they simply promised the seller to give them the gold later and handed them a letter of credit instead. Paper notes had the advantage that they were lighter than gold and easier to count, store, and protect. Rulers and politicians then soon realized that they could issue these notes themselves and started prohibiting others to do so. To win the trust of their people, they promised to pay back every note with an equivalent amount of gold. Around 100 years ago, rulers began craving for more money than they had, and so they stopped backing it with gold and just began printing as many notes as they needed. The so-called fiat money was born. The newly printed money was often given to business owners in the form of cheap loans. This allowed them to invest, hire, and increase economic activity. Employees who earned and saved that money realized that while prices of everyday goods went up over time, the buying power of their savings went down. As a result, they often spend their savings fast, further increasing economic activity. But soon, some began to understand that while their incomes remained relatively flat, housing and company stocks kept rising and rising. Inflation of asset prices happened because while there was more and more money, there was still just the same limited amount of land to buy. Some started to argue that whenever governments print new money, they effectively reduce the savings of the poor and increase the prices of homes, usually owned by the rich. This is one reason people began searching for a new form of money. Cryptocurrencies like Bitcoin are the latest form of
of money. They work just like the others because people can place trust in them. Unlike fiat money, bitcoins are created by a decentralized network of mathematical code. That means that they can be transferred directly from person to person without the involvement of middlemen, and no one can increase the fixed amount of 21 million bitcoins there are, which is the main reason people trust and save them. What do you think? Will history end here and Bitcoin become and remain the last form of money? And if Bitcoins disappear again, which form of money can we all agree to trust going forward? Before you make your argument, you may want to know that so-called honest or good money usually has 5 characteristics: scarcity, durability, portability, divisibility, and verifiability. Yeah. So that's how it is. आपने जर्नी देखा मनी का। अब मुझे एक बात है, इसमें एक पॉइंट पर्टिकुलर आया था जिसमें ये बोला गया था कि the poor become poorer when people start printing money. Why so? आज हमारे लाइक गवर्नर स्टार्ट करते हैं कि चलो कल की डेट में मैं ढेर सारी करेंसी प्रिंट करूँगा सबको मेरे स्टैंड अप वैल्यू किसकी गिर जाएगी? सर मनी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। इससे क्या होगा? सर इन्फ्लेशन, सर जो काउंटर प्राइस भी है वो बहुत बढ़ जाएंगे। इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है? महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। रियल वैल्यू ऑफ मनी डिमिनिश हो जाएगा। करेक्ट। तो ये हमारे रेगुलेटर्स दे ऑलवेज थिंक ऑफ कि इट्स नॉट सफिशिएंट टू प्रिंट द मोर ऑफ मनी। अदरवाइज क्या होता है, कोई भी ऐसी इकॉनमी पकड़िए जिसमें ज़्यादा प्रिंटिंग ऑफ मनी की है, वो कभी बहुत ज़्यादा अच्छे शेप में नहीं रही है। हमारे नेबर्स एग्जाम्पल है, जिम्बाब्वे एग्जाम्पल है, कुछ हद तक लैटिन अमेरिकन इकॉनमीज है, उसी एग्जाम्पल है जहाँ पर इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में है, देयर रियल वैल्यू इज गोइंग फॉर टॉप्स। आप मिल्क देख लें, वहाँ पे मिल्क का एग्जाम्पल, इसेंशियल गुड्स का एग्जाम्पल, मेडिसिन, जेनेरिक ड्रग्स का एग्जाम्पल, तो यू बी सीइंग दैट दोज प्राइसेस आर टचिंग स्काई हाई। तो वैल्यू वही है, हमारे यहाँ 5 रुपये की मिलेगी, वहाँ 50,000 में मिलेगी, तो बड़ी वैल्यू नहीं आ रही है कुछ भी। आप दोनों को जस्टा पोजिशन करेंगे, इक्विवेलेंट रखेंगे, तो हमारा 5 रुपये उनके 50,000 के बराबर हो जाएगा। तो रियल वैल्यू ऑफ मनी इज वन। दैट्स व्हाई वी कैन प्रिंट। फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि हम जो भी मनी प्रिंट करते हैं उसके इक्विवेलेंट में, जैसे कि फिएट मनी है, इसके इक्विवेलेंट को गोल्ड रखना पड़ता है किनारे। ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग बस प्रिंट कर, चलो हमारा दिमाग आया हमें प्रिंट करेंगे, लेकिन गोल्ड कहाँ है हमारे पास? उतना गोल्ड हम जो बुलियंस होते हैं, बुलियन के फॉर्म में रिजर्व बैंक में, यहाँ कानपुर लखनऊ में है, ऐसे मुंबई में है, तो शेल्फ होती है जिसमें हम लोग इक्विवेलेंट गोल्ड अलग करते हैं। भैया चलो हम इतना प्रिंट करेंगे, 10 बिलियन प्रिंट करेंगे, तो इतना गोल्ड उसके अगेंस्ट रखा जाएगा, जिसको लोग चेक करते हैं। देयर आर द ऑडिटर्स हु विल बी चेकिंग। रिजर्व बैंक इज नॉट, इट्स अ सॉवरेन, बट इट्स क्या बोलते हैं, चेक, उसके भी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा प्रिंटिंग नहीं करते मनी की, बिकॉज वी आर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये जस्ट उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है दैट वी डिस्कस अभी मैच है। हाँ, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, फाइनेंशियल लिटरेसी लाइफ साइकिल नीड्स। नीड्स क्या होती है किसी भी पर्सन की? नीड्स क्या होंगे? बेसिक नीड्स को बताएं। फिजियोलॉजिकल नीड, करेक्ट। कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, फेमस वाला। उसके बाद स्कूल जाना है, बाद में शादी ब्याह करना है, बच्चे होंगे, दुनिया भर की चीज़ें। तो ये सब चीज़ें क्या होती है ना कि ये सब हमारी एसेंशियल नीड्स हैं, जिसको वी कैन अवॉइड क्या कर सकते हैं? लग्जरीज तो ठीक है, लग्जरी क्यों अवॉइड करेंगे? लग्जरी लेकिन क्या अवॉइड करेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं, बैड हैबिट्स, सिगरेट्स, स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग, ऑल दिस थिंग वी कैन अवॉइड। ऐसे ही कुछ जैसा आपने लग्जरी बोला, लग्जरी ठीक है, आपके पास अगर मीन्स है, लग्जरी इज ओके। इफ यू नॉट हैविंग मीन्स, गोइंग फॉर लग्जरी, दैट्स एक्सपेंस। जैसे कि हम लोग 30,000, 40,000, 50,000 कमा रहे हैं, एंड वी आर वाचिंग फॉर वर्साचे स्पेक्टेक्स, ठीक है ना, सिंपली बाई ना। तो ये हमारे लिए नॉन एसेंशियल एक्सपेंस हो जाए कि जैसे हमारे वर्साचे का सूट खरीदे जा रहे हैं, लाख रुपये खरीदता है, लाख रुपये सैलरी, क्यों खरीदेंगे ऐसा? तो लाइक दैट ये एग्जाम्पल दे रहा है हमारी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल नीड्स का। तो आइडियल क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द आइडियल? एसेंशियल नीड्स को अच्छे से रखें, नॉन एसेंशियल को डाउन करें, और जब डाउन करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? सेविंग्स होगी। सेविंग्स में तो कहाँ जाएंगी? तो हियर वी विल बी कमिंग टू द पिक्चर्स, बैंक्स। ओके, ये है।
तो आप कोई भी आदमी बैंक, अच्छा पहले चलिए बताइए बैंक क्या होता है? Anyone? Please, ladies, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। इट्स ओके, सेवी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बट बैंक क्या है? बिकॉज यू नीड टेक्निकल ना, सो सॉरी, ओके, या एनीबडी एल्स? I'm not asking, yeah. Basic functions, accepting deposits and granting loans. So he is bang on. The lady was correct. It's not like she was not correct, but he is more specific. Accepting deposit for the purpose of lending and investment as per section 5 of banking regulation act is banks. कि हमारा जो बेसिक काम था, ऐसे बहुत काम करने लगे हम लोग, लेकिन जो मेन काम है वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन बैंक है आप लोगों में से? वेयर क्वेश्चन, बट आप लोग कौन कौन बैंक है इसमें? आप लोग क्यों बैंक नहीं है? अभी तो पैसा लेके गए अपने, आप 3 फ्रेंड्स बैठे हैं साथ में, बीच वाले को पैसा दीजिए, उनको पास कर देगा, क्या देगा? There is no authorization by the central bank. That's one aspect. No authorization, No trust. no trust, very good. No fiduciary capacity, correct. Very technical. Anything else? That is covered already, ना? No authorization. So one is correct. बैंक क्या होते हैं? जैसे देखिए, पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है ट्रस्ट। आप 3 फ्रेंड मिले, बैठ के आप तीनों अपने आपस में जाकर कर लिया। आप कोई यहाँ से आयन बैंगलोर जा रहे हैं, ठीक है? आयन बैंगलोर को जा रहा है, वहाँ उसको फी देनी है। आप लोग लिटरेट है, मैं भी लिटरेट हूँ, सब कुछ ठीक है। बट कोई गाँव का बच्चा है जिसने अभी कुछ देखा नहीं है, बट ही इज इंटेलिजेंट, उसको जाना है आयन बैंगलोर। तो अपने दोस्त से बोलेगा ऐसा मुझे आयन बैंगलोर जाना, मुझे आयन करना है, MBA करना है। ही इज नॉट अवेयर व्हाट इज MBA। कौन देगा उसको? वो तो कभी नहीं देगा। हमको मालूम है आयन क्या है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ऐसे ही जैसे बोल रहे इन्वेस्टमेंट का, आपके जो पैसे हम लेते हैं वो वैसे नहीं करते हैं, लोग रख के बैठ जाते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो जब लेंडिंग करेंगे तो आप कर रहे हैं रिटेल लेंडिंग, बहुत छोटा सा पार्ट होता है रिटेल लेंडिंग हमारा। वो कितने % मार्जिन होगा? आपसे 4% आपको दे रहे हैं, आपसे 10% ले रहे हैं, 6% हमारा प्रॉफिट हो रहा है। मैं बता भी दे रहा हूँ, अपने सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं हम लोग बैंक के। 6% में भी और प्रॉफिट एज सच, बट द मेजर चंक इज गोइंग इन इन्वेस्टमेंट्स। बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग अलग जो SPVs होते हैं, लोन्स के बनते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वहाँ से हमें मेजर चंक आता है। ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट बनता है वो आपको हम लोग पास करते हैं लोन को सस्ता है। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी अलग चीज़ है, बहुत टेक्निकल हो रहा है, उतना नहीं जाएंगे, लेकिन हम जो हमारा प्रॉफिट होता है उसका भी कुछ पर्टिकुलर चंक आपको पास करते हैं, हम लोन सस्ता करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बैंक का पर्पज हुआ। सभी बैंक नहीं हो सकते, उसके लिए क्या होता है ना कि हमको एग्रीगेटर भी है, आपसे ले रहे हैं, इनसे ले रहे हैं, सबसे ले रहे हैं, अंबानी भी ले रहे हैं, तो सबको अलग अलग स्प्रेड पास करते हैं। उससे हमारा एक बड़ा चंक बन रहा है जिसको हम गारंटी करते हैं कि हम पे करेंगे। आप हमसे हमको पैसा दीजिए, हम आपको जब चाहेंगे हमसे ले लीजिए। ऐसा दूसरा बंदा नहीं होता, क्योंकि उसके पास केवल आप ही का पैसा है, दूसरों का नहीं। तो इसको बोलते हैं सॉल्वेंसी। तो ये टिपिकल कॉन्सेप्ट है, तो सारे धीरे धीरे समझेंगे आप लोग। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है। कोई बच्चा यहाँ से IIT जाना चाहता है, IIT के लिए आपके पास से 5 साल और 50,000 रुपये चाहिए। ठीक है, आपको सेविंग कितनी करनी है आज से, वो कैलकुलेशन 50,000 रुपये चाहिए, आफ्टर 5 साल चाहिए। 365 बड़े 5, 1825 देने हैं। 1825 को 50 से जोड़ के 27 पे आज से सेव करेंगे तो आपका 50,000 तैयार है आज से 5 साल। इसी को 5 जो 50,000 है उसको 5 तक भी कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन करके। आपको हमारी भी जरूरत नहीं है। तो ये होती है छोटा सा एग्जाम्पल सेविंग का, कि आज की डेट में आपको 100 रुपये सुबह देते हैं कि चलिए भैया जाइए आराम से अपना करिए। उसमें आप 27 रखते हैं तो आप IIT की डेट में तैयारी करें। ये पैसा अगर आप बैंक में डाल देंगे 27 में RD के हिसाब से, छोटा अमाउंट तो 100 में RD होती नहीं है, बट स्टिल 100 रुपये भी डाल देंगे तो उसका पर्टिकुलर इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो ये सब क्या है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग जैसे एग्जाम में थे उस समय उतना इंपॉर्टेंस नहीं थी। अभी भी इंडिया उस फेज में था कि हमको उतनी पैसे हमारे शेयर नहीं होते थे, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं थे। आज के दिन में हम लोग डेवलपिंग से आगे बढ़ रहे हैं, वी आर हायर डेवलपिंग इकोनॉमी, तो हम लोग को सेविंग हैबिट बनानी पड़ेगी। और आपको जान के आश्चर्य होगा, हम लोग बाहर भी काम किए हुए हैं, हम लोग बाहर की इकोनॉमीज में जाएंगे, जैपनीज इकोनॉमी, यूरो जोन में या अमेरिकन इकोनॉमी को टच करेंगे, दे आर हैविंग ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि हम खर्चा नहीं करते हैं, सेव करते हैं। वी आर द सेविंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी की निशानी होती है कि वो सेव करते हैं और जब टाइम आता है तो खर्चा करते हैं। आप देख लीजिए, कहीं भी जाइए, किसी यूरोपियन कंट्री में जाइए, स्टार्टिंग फ्रॉम किसी बड़ी सिटी में जाइए, बुडापेस्ट में जाइए, हंगरी में जाइए,
आप सोल में जाइए, आप टोक्यो जाइए, आप ओसाका जाइए, हर जगह लोग खर्चा कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड पे लंबे लंबे हैं, किसी का 3 लाख का बिल है, किसी का 5 लाख का बिल है, बिकॉज वो स्पेस को क्रॉस कर चुके हैं, उनकी सेविंग अच्छी है। जैसा कि मैं लास्ट प्रेजेंटेशन बता रहा था कि एक सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ जापान, उसके बाद इतना गोल्ड है कि वो अमेरिकन इकोनॉमी को 5 लाख कर देगा, यानी 41 ट्रिलियन मल्टीप्लाइड 5, ऑलमोस्ट 200 ट्रिलियन गोल्ड। आप कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, जैपनीज इकोनॉमी में इतना उनके सेंट्रल बैंक ने रखा है। तो वो सेविंग फेज क्रॉस कर चुके हैं, हम लोग सेविंग फेज में चल रहे हैं, इसलिए सेविंग इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। आगे बढ़ाएं सेविंग पर। हाँ, आप मुझे बताएं कोई आदमी कंपाउंडिंग क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडिंग है, सब समझते हैं क्या डिफरेंस होता है सिंपल और कंपाउंडिंग में? ये तो पढ़ाओ आपको। इन सिंपल इंटरेस्ट हम लोग डायरेक्टली जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे सारे ईयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ऐड ऑन कर देते हैं। बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर हम लोग का प्रिंसिपल चेंज होता है। सो यही हम लोग हर साल उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा करके सर एक नई अमाउंट निकालते हैं और उस पर फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के नई सिंपल और कंपाउंडिंग में सिंपल सा डिफरेंस क्या होता है कि सिंपल में हम प्रिंसिपल हमारा चेंज नहीं होता, कंपाउंडिंग में हम इंटरेस्ट जो हर साल अर्न कर रहे हैं या क्वार्टरली अर्न कर रहे हैं, इस तरह उसको ऐड करते जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। आपको विश्वास नहीं होगा कि कंपाउंडिंग हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, छोटे छोटे पीरियड के लिए कंपाउंडिंग हमको दिखेगी नहीं, बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एग्जाम्पल ये है। देखिए कोई 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए केवल लगा दे किसी स्कीम, आई एम नॉट टेलिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आई एम नॉट टेलिंग एसआईपी, आई एम नॉट टेलिंग आरडी, एनी स्कीम, सी द रिटर्न। आपका क्या होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट रखेंगे आपने किसी अपने दोस्त को दिया, बोले 10% भाई हमको वापस कर देना 1 साल बाद, 100 का देंगे 1 वापस कर देगा, ये पहले साल करवा देगा, तो 10 का वापस खींच लिया सिस्टम से। जो अच्छा अपना एग्जाम्पल दे रहा था, स्टूडेंट वॉज गिविंग एग्जाम्पल, आप 110 पे नहीं किए उसको, 10 पे बाहर खींच लिए, जब वो 110 में तो नेक्स्ट ईयर आपका इफेक्टिवली 11% हो जाएगा इंटरेस्ट, अगले बार 11.5 हो जाएगा, ऐसे वो इंटरेस्ट आपका 10% सेव है, लेकिन बिकॉज योर प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई योर इंटरेस्ट विल इंक्रीज। और ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है कि किसी ने भी 2018 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में या किसी भी स्टॉक्स में कुछ पैसे डाले हों, आज 2025 में 7 साल में पैसा ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है। पीपल कैन आर्ग्यू कि उस समय कोरोना चल रहा था, दुनिया भर की चीजें थी, बट स्टिल दैट पर्टिकुलर मनी हैज बीन थ्राइस, 3 गुना रिटर्न कौन देता है? गोल्ड भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। तो ये कंपाउंडिंग की पावर है। आप लगाइए, आज की डेट में IRR का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लोग बोलते हैं उसको, वो लगभग यहीं से निकल गया है कि आप छोटा सा पैसा डालिए सिस्टम में और आपको जब आप 3 साल 4 साल बाद देखेंगे तो अच्छा अरे ये 10% नहीं था, अचानक में 13-14% रिटर्न कैसे मिल रहा है? वो इस तरह से मिल रहा है जो हमारे फ्रेंड ने एक्सप्लेन किया कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाएंगे आप। तो दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अभी की तरफ से ये मेरा एक सजेशन माने आप लोग, आई एम नॉट टेलिंग कि इन्वेस्ट इन मार्केट्स, किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को पकड़िए और 1000 रुपये महीने का सेव कीजिए अगर कर पाए। आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउ द फाइनेंशियल वर्क्स एट योर एज एज सच, क्योंकि हम लोगों को मुश्किल से 50 मिलते थे, तो आप कैसे लेते हैं उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन अलग कीजिए, 500 रुपये अलग कीजिए और डालिए। और मेरे कहने का देखिए 3 साल 4 साल 5 साल जब भी आप उस फेज में आए कि आपको पैसे की आवश्यकता हो, तब आप देखिएगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। हमने देखा है, हम लोग भी डरते थे हर चीज़ से कि भैया साइकिल में नहीं जाना है, पैसा डूब जाएगा सब कुछ। छोटा सा अमाउंट, जैसे मान लीजिए मेरी 1 लाख तनख्वाह है तो मैंने उसका 1000 बताया कि 1% अलग किया, हम 1% को नहीं डालेंगे, मेरा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, और उसने ही इतना ज़्यादा रिटर्न दे दिया मुझे, उसके बाद सामने आ गया ये कितनी अच्छी चीज़ है। प्लीज़ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बैंकर आपके पास आता है, चलिए दीपक कुमार सिंह असिस्टेंट जनरल मैनेजर आपके पास आते हैं, बोलते हैं कि सर ऐसा है कि मैं आपको 13% रिटर्न दूंगा या 12% रिटर्न दूंगा किसी प्रोडक्ट पे और आपका पैसा 10 साल में डबल हो जाएगा। मैंने बोल दिया ये वो फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं। नहीं दीपक सर, रूल ऑफ 72 आपको नहीं मालूम, जितने परसेंट का इंटरेस्ट कोई भी आपको प्रॉमिस करता है, किसी भी इवन आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम से भी लगा लीजिए इसको, 12% का इंटरेस्ट प्रॉमिस कर रहा है तो पैसा 6 साल में डबल, 72 डिवाइड बाय 12, जो भी इंटरेस्ट आपको प्रॉमिस कर रहा है बंदा, अगर कोई आपको बोलता है कि ये मेरा बहुत अच्छा पार्ट है, इसमें आपको मैं 12 की जगह 24 मिनट दूंगा और आपका जो पैसा होगा 5 साल में डबल होगा, 3 साल में डबल होगा, अगर नहीं बोल रहा तो गलत होता है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है कि आपका पैसा कितने दिन में, इसे एग्जाम्पल लेते हैं FD, सबसे सिंपल प्रोडक्ट है हमारा 6% की रेट पे, तो 6% की रेट वाला FD कितने साल में पैसे को डबल कर देगा? 12 साल। तो ये रूल ऑफ 72 आपको हमेशा याद रखिए किसी भी चीज़ में। जैसे लोग नहीं बोलते बढ़िया डिजाइनर वॉच आती है, मान लीजिए क्यू एवर की वॉच चाहिए, तो लोग बोलते हैं वॉच बहुत सेलिब्रिटी बहुत है, वॉच
अरे सर आप रोलेक्स की वॉच लीजिए, अगले 3 साल में पैसा डबल कर दीजिए। ऐसे एग्जांपल्स हैं, आप यूट्यूब पे जाकर देखेंगे ना, देयर आर फ्यू सेट ऑफ वॉचेस बहुत जिसमें लोग बहुत हैप्पी इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो प्रॉमिस करती है इनको 72 के थ्रू कि मैं 3 साल में पैसा डबल करूँगा और कर देंगे। तो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला शुड बी विथ यू whenever you are interacting in any kind of financial conversation with any financial person, let it be bank or LIC और कुछ भी, तो आप इसको हमेशा याद रखें, गूगल में डालें, इसके बाद और चीजें मिलेंगी। अभी थोड़ा सा बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट हमने छोटा सा रखा है इसको कि जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 72 से डिवाइड कीजिए, मिल जाएगा आपको उतना, इतने साल में पैसा डबल कर देंगे प्लीज। हाँ, आप मनी मूल पे जाने के पहले कोई बताया मनी मूल क्या होता है? ये फाइनेंशियल लिटरेसी इसमें बहुत पर्टिनेंट है। व्हाट इज मनी मूल? very simple, very easy also. Money मूल, मूल कोई समझता है? Crossbreed of horse and donkey. Sorry? It's an animal that is commonly a crossbreed of an horse and a donkey, and it's used to carry a load of heavy loads. Yes. Taking cue from your example, so there are few set of people in this financial system who are like mules. They are carrying the packages of other people. So I will explain the money mule. First see the video. Hare Krishna. ओए कपटे क्या भाई लोग पर तू तो अपना यार है तुमने बैंक अकाउंट की जानकारी दी कुछ लोग पैसे दे सकते फिर कमीशन के पैसे काट लिए आप लोग को पता है कि बैंक अकाउंट में पैसे देना अरे फंसे गया भाई साहब ऐसा तो मनी म्यूल कहते हैं देखिए साहब कुछ अपराधी तक कमीशन का लालच देकर अवैध धन का हेरफेर करने के लिए आपके खाते का दुरुपयोग कर सकते हैं। ये खैर जेल हो सकती है आपको याद रहेगी आपकी है। ठीक है, तो क्या समझा आपको बताएं? Anybody? ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मनी मूल क्या होते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट मान लीजिए 50 बच्चे बैठे हुए हैं। मैं एक आया अच्छे से मतलब कहीं से पैसा चुरा लाया 10-12 लाख रुपए, अगर मैंने उठा के अपने खाते में डाल दिया तो हमारे ऐसे सिस्टम में पकड़ लेंगे 2 मिनट। कोई भी ट्रांजेक्शन आप सीटीआर करते हो, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट या अलग अलग तरीके के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं तो मुझे पकड़ लेंगे क्योंकि बड़ा अमाउंट है। अब मैंने क्या किया, बच्चों को पकड़ा, बाहर खड़ा हो गया, टीचर्स को पता रिसीव किया और बोला कि ऐसा है कि मैं आपको 50 सब खाते में 100 या 1000 रुपये डाल दूंगा और आपको उसका पर्टिकुलर 50 रुपये या 10 रुपये 20 रुपये आपको दे दूंगा। तो खुश, अरे क्या कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, निकल रहा है, 1000 रुपये का हमारा कोई क्राइम तो है नहीं, 1000 रुपये डालना पैसे सब निकाल लेना, इट्स नॉट अ क्राइम। और 10 रुपये आपको दे के और 990 रुपये निकाल दिया जाएगा आपके यहाँ से। बट इसको बोलते हैं, अगर सिंपल भाषा में मनी लॉन्ड्रिंग बात है, इसको लेयरिंग बोलते हैं। और इस तरह से लोग पैसे छुपा के डिस्ट्रीब्यूट करके गंतव्य स्थान जो होता है वहाँ ले जाते हैं। हम लोग वी आर कॉल्ड मूल्स, जैसा आपने बोला ना डॉन्की, काइंड ऑफ वी आर हैविंग द बर्डन ऑफ अदर्स ऑन आवरसेल्फ। तो यहाँ पे अभी तो हम बता रहे हैं बड़ी बड़ी ब्रांचेस में, मैं मेन ब्रांच का चीफ मैनेजर था, इतने एग्जाम्पल्स हैं कि सिंपल बच्चे किसान लोग हैं अपने खाते को लैंड कर दे रहे हैं। इसेंशियली लैंडिंग कि हमने किसी को अपना किराया पे दे दिया खाता, उससे काम कर रहा है, हमको उसका किराया मिल रहा है 10-10 रुपये के फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं मूल्स, मनी मूल्स। और ये पनिशबल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है, ध्यान रखिए, इट्स नॉट सिविल ऑफेंस। ये पीएमएलए के एक्ट के अंदर क्रिमिनल ऑफेंस है, 7 साल की सजा है। तो किसी ने कोई आपको अप्रोच करता है बाई एनी मीडियम, बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि फिजिकली कोई आगे खड़ा हो जाए यहाँ पे, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आपको बोलता है ओके ये है आपकी स्कीम और इसमें आपको 100 रुपये डालेंगे, 10 आपका हो गया, 90 मैं निकाल लूँगा कुछ दिन बाद, आपको ये ट्रांसफर कर देना है। इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, मतलब बैंकिंग सिस्टम इज नॉट डिजाइन इन अ वे कि वी कैन कैच होल्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इस वेरी वेरी डेंजरस थिंग, आप इससे बहुत दूर रहिए। कोई बोलता है कि बच्चा मैं आपके खाते में 50 हज़ार डालूंगा, 500 आपका, 45,000 में ले जाऊँगा, 50,500 ले जाऊँगा, एकदम नो, आई विल नॉट डू दिस। और सबका तुरंत उसको ब्लॉक मारिए, हो सके तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इन्फॉर्म कीजिए उसके बारे में। दिस इज कॉल्ड मनी मूल। समझ में आ गया सभी को? आप समझ में आ गया? हाँ, रुकते हैं क्योंकि देख लेंगे डिजिटल अरेस्ट, पेपर पूरा भरा हुआ है इसमें डिजिटल अरेस्ट से। आप बताएं इसके बारे में कोई? हाँ सर, मोस्टली नॉर्मल कॉल या व्हाट्सएप कॉल करके आपको बताया जाता है कि पुलिस है नहीं, वो लोग
कस्टम डिपार्टमेंट से आपका कोई पार्सल फंसा है, आपके अकाउंट से फ्रॉड हुआ है, या कोई अदर अकाउंट से पैसा आ गया है, लाइक आउट ऑफ इंडिया से पैसा आया है, फिर वो आपसे आपका आधार नंबर और बाकी डिटेल्स मांगते हैं जिससे आपके बैंक अकाउंट हैक हो जाए। और फिर उसके बाद सर वो लोग लाइक पहले तो डिटेल्स आपसे लेंगे, उसके बाद कह देंगे कि आप डिजिटल अरेस्ट में ऑन वीडियो कॉल या फिर आपको अपनी स्क्रीन ऑन रखनी पड़ेगी, आप हट नहीं सकते और डिजिटल अरेस्ट सिंपल है, जैसे कि जनरल अरेस्ट होते हैं, हम आएंगे आपके पास तो बोलेंगे ऐसा यू विल बी पेनलाइज्ड अंडर सेक्शन 302, 307, 309, 303 तो उसमें आपको फिजिकली आके पुलिस अरेस्ट करती है। चलिए आपने क्राइम किया है। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है कि पीपल विल प्ले विद योर साइकोलॉजी इन ऑर्डर टू डिसीव यू सो दैट यू प्रिज्यूम दैट यू आर अंडर अरेस्ट थ्रू डिजिटल मीन्स। आपको सिक्योर कर देंगे, मतलब ऑस्ट्रेसाइज सिक्योर कर देंगे। और ये किसको टारगेट करते हैं? जो जनरली आदमी अकेला है, इसके पास आसपास कोई है नहीं। मान लीजिए मेरे बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, मतलब फॉरेन में है, यूएस में है, या स्टेट्स में कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं, LA में है या शिकागो में है। अब वो तुरंत आपको बता नहीं पाएंगे, वहाँ रात चल रही है, कुछ हो रही है, बोलेंगे आपके बच्चे अरेस्ट हो गए वहाँ पे, उन्होंने फला फला क्राइम में इसलिए किया, वो किया, इसे एक्सटेंड कर दिया है, और आपको बोलेंगे आप चलिए दूसरे लोग, इससे कि आसपास कोई हो, उससे आपको सिक्योर हो जाए, ऑस्ट्रेसाइज हो जाए वहाँ से, और फिर बोलेगा आप इसलिए अरेस्ट हो गए। और ये इतना खतरनाक चीज़ है, आपको महाराष्ट्र के बड़े बड़े IAS अफसर, IPS अफसर फंसे हैं। अपना एग्जाम्पल दूँ, मैं एक जगह पोस्टेड था पहले, अभी 4 साल बाहर पोस्ट होकर आया हूँ, तो मेरा एक पार्सल आ रहा था, मतलब मुझे बताया गया कि आपका एक पार्सल जापान से थाईलैंड के थ्रू आ रहा है, उसमें नार्कोटिक्स मिली है। और मैं 8:30 बजे लखनऊ में सो को था, हालत खराब हो गई। हम कह रहे मैंने वाइफ से पूछा कि अरे कुछ मंगाया था क्या वहाँ से, किसी कोई दोस्त हमारे हैं वहाँ पे जापान में, तो उन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं मंगाया। फिर 5 मिनट सोचा, जब उसने ये बोला कि आई एम लाइक सम IPS अफसर सिटिंग इन मरीन पुलिस स्टेशन, मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन, तब मैं समझ गया कोई IPS पुलिस स्टेशन तो बैठा नहीं। तो फिर हमने कभी समझाया तो अच्छे से काट दिया, लेकिन मेरे साथ लिटरेट आदमी पीछे करके फंस गया 10 मिनट। क्यों? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी से प्ले करेंगे। उनको मालूम है कि मेरे स्टाम्प, मेरे पासपोर्ट पे स्टाम्प लगा है, कहीं से डेटा लीक हुआ है, मेरे पे इमिग्रेशन जापान का लगा हुआ है, उनको मालूम है। ऐसे ही आपसे पूछेंगे, कहीं आपने कुछ अभी अमेजन में कुछ खरीदा, बोलेगा आपका अमेजन पैकेट रहा था, उसमें नार्कोटिक्स मिल गया। अमेजन से कुछ ऑर्डर हुआ है, ये आपको मालूम, आपने किया है, तो आपको फंस जाएंगे ना, दिमाग क्या आएगा, अरे क्या हो गया ऐसा, हम तो किए थे ऑर्डर। ऐसे अपने भाई को आप राखी बेच रही है, तो राखी आपने मान लीजिए ब्लू डॉट से भेजा, ब्लू डॉट वाला लिख कर दिया नंबर आपका, तो वो कॉल करेंगे, आपने राखी नहीं थी, राखी के अंदर नार्कोटिक्स मिला है, और नार्कोटिक्स ऐसा पनिशबल है, सब पढ़ा जाता है। तो ये सब चीज़ें ना बस आप साइकोलॉजी से प्ले करते हैं। बी कूल, आराम से उनका जवाब दीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, जैसा कि ये बताया प्लीज सकते। जी अभी पुलिस स्टेशन आई थी। रुकिए वरना घर आ जाए क्या? क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। ठीक है, यही इजी लैंग्वेज का बेटा है एक्सप्लेन कि ये है डिजिटल अरेस्ट। तो इसलिए ना ये सब चीज़ों से अपने और अपने साथ के 10 लोगों को, ऐसा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती है, अपने साथ के 10 बच्चों को, मम्मी पापा को, उनको पूरी आगे वाले को बताएं, तो खुद ही कुछ दिन में खत्म हो जाए। ऐसे लोग पहले नहीं बोलते थे इंटरनेट बैंकिंग यूज करिए, OTP फ्रॉड होते थे, खत्म हो गए ना वो, क्योंकि लोग जागरूक हो गए। ऐसे ही डिजिटल अरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। बट बाई द मीन टाइम वी नीड टू बी वेरी कॉशियस कि हमारी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग रहे कि सब चीज़ों को झेलना है। ठीक है, प्लीज। हाँ, तो इसके बाद की 3-4 स्लाइड स्टेट बैंक के बारे में है। मैं ही ब्रीफ कर देता हूँ। ऐसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी ऑलमोस्ट 200 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। बैलेंस शीट साइज इतनी बड़ी है कि केवल 10-15 कंट्रियाँ हैं जो हमसे ऊपर की GDP होल्ड करती हैं। स्टेट बैंक ठीक
और उसके बाद अपने इंटीरियर छोड़। और आप देखिए हमें स्टार्टिंग फ्रॉम जहाँ पे आपको एक BSNL की कनेक्टिविटी मिलेगी वहाँ आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिल जाएगा आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम ले कन्याकुमारी या राजस्थान के बाड़मेर से लेके लास्ट के आइजॉल तक। तो आपको जिस एज में आप लोग हैं, जिस पता नहीं मतलब क्या परसेप्शन आप लोग कैरी करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, बट मैं खुद अपना एग्जाम्पल तो मैं टीचर्स का इंजीनियर था, NIT के पास आउट। तो जब हम लोग पहली बार खोलने गए तो हमको भी साथ ही लगा करना था खोलने 2002 में आई थिंक, बट स्टिल वी हैव चेंज लॉट। और हमारी अब इस समय की बैलेंस शीट ऐसी है कि मतलब कोई आसपास में नहीं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग कंपनी है हम लोग उसमें इंडिया है। आप मतलब कि आसपास में कोई नहीं, रिलायंस कभी कभी टक्कर देता है, कभी वो आगे कभी हम आगे, बट रिलायंस के रिसोर्सेज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वी आर बैंकिंग विद मुद्रा कस्टमर ऑल्सो एंड अंबानी जी ऑल्सो। ऐसा किसी का नहीं है, ICICI बैंक का भी नहीं है, HDFC बैंक का भी नहीं है, और अगर PSU तो अलग ही है। तो हमारा सबमिशन क्या होगा इस चीज़ का कि 52 करोड़ कस्टमर हमारे साथ हैं इस समय, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ भारत की जो पॉपुलेशन है वो हमसे बैंकिंग कर रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो इस चीज़ में हम बहुत प्राइड लेते हैं और सभी से अर्ज करते हैं कि जितने स्टूडेंट हैं, जितने हमारे टीचर में बैठे हैं यहाँ पे, एक बार ट्राई कीजिए, इफ यू आर मेंटेनिंग इट्स ओके, इफ यू नॉट मेंटेनिंग जस्ट ट्राई इट फर्स्ट, कुछ भी जाता है। एक बार आए कोई हमारा प्रोडक्ट है, उसके बाद यू सिंपली सी कि कैसे हम सर्विस दे रहे हैं। कुछ नंबर्स हैं हमारे, आप देखेंगे 52 करोड़ के आसपास कस्टमर हैं, 5000 ब्रांचेस हैं, और हाफ ऑफ द इंडियन वर्किंग पॉपुलेशन हम कवर करते हैं। एक डेमोग्राफिक वाली भैया आपके पास है, ये देखिए हमारे कुछ नंबर्स हैं कि पूरे भारत का ऑलमोस्ट 1/5 डिपॉजिट एडवांस साइड पे हमारे पास है। और एक जैसे कि फॉर्च्यून 500 की रैंकिंग होगी, बिकॉज यू पीपल आर कॉमर्स स्टूडेंट, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दिस। फॉर्च्यून 500 वर्ल्ड की 500 कंपनियों को लिस्ट करता है जो सबसे अच्छी है मार्केट कैपिटलाइजेशन से कम कर। मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब स्टॉक एक्सचेंज से नहीं बोल रहा, वैल्यू अच्छी है, भरोसा है, सब कुछ चीज़ें हैं। उसमें एकमात्र सिंगल बैंक PSU है हमारी। इसके बाद जो आती है काफ़ी डिस्टेंस है, लास्ट में HDFC बैंक है, आई गेस 400 बैंक है, हमारी 180 बैंक के आसपास है। ये सर देखिए आप जेनजी हैं जो हमारे कभी टारगेट ग्रुप है हमारे, कितने कस्टमर अलग अलग ग्रुप के हमारे साथ अटैच हैं आप देखें। ये सब भी आपको कॉन्सेप्ट आएंगे कॉमर्स में, व्हाट इज जेन जी, व्हाट इज जेन वाई, ऑल दिस। लिबरलाइजेशन के बाद की जो पॉपुलेशन आई थी उसको जेन वाई बोलते हैं, जेन एक्स बोलते हैं, हाँ जेन एक्स बोलते हैं, फिर जेन वाई है, अब जेन जी चल रही है। जो डेमोग्राफिकल डिविडेंड आप समझते होंगे ना कि हमारी इंडिया क्यों ग्रो कर रहा है, बिकॉज वी आर हैविंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वर्किंग पॉपुलेशन, जो 32, 38, पहले 32 था, 38 कर गया है कि 18 से 32 की जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, अब 18 से 29 कर दिया, 38 कर दिया है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे पास है। तो ये हमारा गोल्डन पीरियड है, आप लोग हमारे गोल्डन पीरियड में, हम गोल्डन पीरियड जी रहे हैं, अगर इसमें हम ग्रो नहीं कर पाए, बैंकिंग से इतना थोड़ा बोल रहा हूँ आपको मैं, इस अगर पर्टिकुलर पीरियड में यू नॉट एबल टू ग्रो, वी कैन नॉट ग्रो, मामला खत्म हो जाएगा, देन यू विल बी डिक्लाइनिंग। जापान जैसे हो रहा है, वहाँ पे हर दिन पॉपुलेशन डाउन हो रही है, बढ़ नहीं रही है, वहाँ डाउन हो रही है। तो बस देख रहा हूँ ग्रो, यूएस कैन नॉट ग्रो, यूएस की रेट देखिए कितना होगा, कोई देख रहा है GDP कितने ग्रो हो रही है वहाँ की यूएस की, किसी को आइडिया? 0.5, हमारी कितनी है किसी को आइडिया? 7, ऑलमोस्ट 7% से हम ग्रो कर रहे हैं। मतलब अगर हम आज के टाइम में 5 ट्रिलियन की इकॉनमी है तो आज से 1 साल बाद 7% बढ़ चुके हैं, आप समझिए। और वो कितने से, अगर 41 ट्रिलियन की है तो वो 0.05 है, यानी 41 पे ही रहते हैं। तो ग्रो हम कर रहे हैं, हमारे कारण वर्ल्ड ग्रो कर रहा है, इसलिए लोग घबरा रहे हैं। People are afraid of India, Indian stories, because people are afraid of us. We, in some extent, China. It's really easy to pass remarks on Chinese economy, so many things they do. Sometimes they do fishy things, but in the most of the time they are able to take out the population from the below poverty line. Major chunk they are able to come out. We are also doing it. इस बार नंबर 1 है हम लोग पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा लोगों को हमने पॉवर्टी से बाहर खींचा है। इस अभी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ेंगे, ठीक है सर। हाँ चलिए, अब कुछ बहुत बेसिक प्रोडक्ट है। सबका सेविंग खाता है, आप लोग सब सेविंग खाता खोले हुए कि नहीं है, बैंकिंग नहीं कर रहे हैं? ओ, और सबकी कोई 10 साल से नीचे तो नहीं होता है, मुझे लगता नहीं। अरे खाता खोलिए इससे पहले, तब तो समझेंगे फाइनेंशियल्स क्या होते हैं। उसमें देखिए हमारे बहुत से प्रोडक्ट हैं। पहला कदम तो चला गया, वो 0 साल वाला के लिए है। पहली उड़ान है, जिसमें आप लोग आगे बढ़ाए से थोड़ा इस तरह के कार्ड्स मिलेंगे प्रॉपर आपको फोटो के साथ। अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को समझने के लिए पहले सबसे पहले खाता ही होगा। पैन कार्ड सबने कराया है कि पैन कार्ड नहीं
जैसे कि हमारा जो पहला कदम पहले उड़ान का है, ये बहुत सिंपल सा खाता है, आपको एक पर्टिकुलर लिमिट अलाउ करेगा। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा भी परेशान हो जाए कि बच्चे को 1 लाख रुपए मिल जाएंगे तो लेके खर्चा कर देगा, ऐसा नहीं है, इतने निकलेंगे नहीं इसमें, ठीक है। तो एक बार पैसा डलवा दिए छोटा सा, काफी छोटी सी लिमिट है जिसको आप एटीएम के थ्रू कर पाएंगे और आप लोग ट्रेन भी होंगे उस चीज से आगे बढ़, ठीक है। ऐसा फैसिलिटी है उसकी, यू नो, किसी का नाम सुना ही होगा, सुना है आप लोगों ने, तो लीजिए ना तब लीजिए, आप यूज कीजिए ना। आई एम नॉट टेलिंग यू ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंटर इन द बैंकिंग फोल्ड्स, लेट इट बी HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, एनीबडी, प्रेफर अस। हम लोग की जो बैंकिंग है, वर्ल्ड में सबसे बैंकिंग मानी यही है, सर इंटरनेट बैंकिंग। इसकी 256 बिट इंटरप्शन है, कोई तोड़ नहीं सकता है। एक एग्जांपल, कोई हमको कहीं का बता दे कि किसी ने इंटरनेट बैंकिंग हमारी हैक की, सबके मिल जाएंगे आपको एग्जांपल। मैं इंजीनियर में चाहता हूँ, हम लोगों ने किया है सब हैकिंग बैंकिंग, फिजिकल हैकिंग होती है, एक चीज हम लोगों ने किया है कई बैंकों के लिए। तो आप लोग समझे ना कि किसी बैंक में एंट्री कीजिए, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाइए अपनी, क्या होता है RD, क्या होता है सेविंग बैंक, कितना पैसा निकलता है, करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है सेविंग बैंक से, इसे तो समझिए प्लीज। हाँ, व्हाट्सएप हाँ, SIP थोड़ा टाइम देना चाहूँगा मैं। SIP समझते हैं कोई? नो, थोड़ा इंटरव्यू कीजिए, आप लोगों का नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन आई बिलीव ये थोड़ा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये रिस्क की बात नहीं है, आपको देखिए SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, RD जैसे नहीं होते हैं, हर महीने एक पर्टिकुलर पैसा डालिए, मार्केट में जाए, अच्छी बात है। मार्केट में कंफर्टेबल ना हो, आप लोग को लगेगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है, ऊपर नीचे है, वॉर हो सकती है, आप डेट फंड में डालिए। डेट फंड एज गुड एज सेविंग फंड, सेविंग अकाउंट कभी पैसा नहीं डूबता, अच्छे रिटर्न भी नहीं है, जिन पर 4-5% मिलेंगे। पर जैसे आपको लगे स्टार्ट कीजिए, 1000 रुपये लेके कोई मतलब बहुत नुकसान नहीं होना उस चीज़ में। डालिए, SIP को समझिए थोड़ा सा, बिना समझे मत जाइए। पहली चीज़ें बोलूँगा मेरे कहने लगे, SIP पढ़िए, छोटे बड़े पापा मम्मी को बोलिए कि ऐसा सर पापा हमको पैसा देते हैं, आपने हमारा 500 रुपये का SIP चला है, 500 छोड़िए 100 रुपये चला है, 100 रुपये को बाहर खड़े बंद रखना है। तो ये थोड़ा ना जाइए गूगल पे पढ़िए आप लोग। अब देखिए गूगल, हम लोग के टाइम में गूगल पढ़ने नहीं था, इसमें आपको सब अच्छी पूरी दोनों नॉलेज आपको गूगल से मिलेगी। फिल्टर आपको करना है क्या आपको चाहिए, अच्छे तो यही पूरा चाहिए, पूरी चीज़ें बहुत बड़ी नहीं है। डालिए SIP बच्चों के लिए कौन सी अच्छी होती है, तो उसने हमको बताया कि सबसे कम रिस्क वाली SIP नहीं है। डालिए, देखिए क्या होता है, आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि रिस्क क्या होता है, ठीक है। आगे थोड़ा वही चीज़ है, लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए है। RD बड़ी चीज़ है, आपका RD सिक्योर होता है, मैं आपको गारंटी पसंद दूंगा। अगर आपको लगता है SIP हटाइए सर, SIP नहीं करना है आपको, SIP मार्केट में जाता है, आप बैंक में खाता खोल के RD खुलवा दीजिए 500 रुपये, एटलीस्ट 6% रिटर्न देगा आपको बिना किसी टैक्स। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको टैक्स नहीं करना है, प्लीज सर। NPS से इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट होती है। एजुकेशन लोन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ने सभी जानते हैं कि IIT का पैसा मिडिल क्लास वाला अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता ऐसा, 20-25 लाख चला जा रहा है। किसी को अहम एडमिशन लेना है, बेंगलोर में हमारे रिलेटिव में बाप रे 25 लाख, और उसके बाद 5 लाख तो आप कैरी फी हो है, 30 लाख रुपये कैसे दिया कोई कहाँ से। IIT ठीक है करती है, बट एम्स नहीं है, एम्स फी बढ़ गई है। तो थोड़ा सा ना ये एजुकेशन लोन क्या होता है कि सिंपल से सबसे कम मार्जिन पे आप लोगों को एजुकेशन लोन दिया जाता है अच्छे इंस्टीट्यूट्स के, और एक से 2 दिन का प्रोसीजर होता है, पर ठीक है उसको भी आप थोड़ा आगे करेंगे, इसका मार्जिन बचाइए। अभी आप लोग सेविंग करेंगे ना तो आपको थोड़े पैसे रहेंगे, जैसा देखिए मैंने पैसे सेव किए हैं, आप मुझे एजुकेशन लोन लीजिए, मैं इसको हमारे मार्जिन चाहिए ना तरीके किया, तो बैंक भी अच्छा लगेगा, अरे वाह कितना अच्छा है, कितना बढ़िया स्कूल में एडमिशन पाया है और बढ़िया इसका रेट है किसी, ठीक है। Now the famous part. Quiz is really easy for your age group as such, but hand raise कीजिएगा, इसके बाद हम लोग आपका आंसर्स लेंगे, ठीक है? Anyone? Okay, that's great. Gone. Sir, there is a Bank of India, the second one. Can we clap for that? और सब लोग इसमें बहुत बोल लीजिएगा कि सारे नाम में टेंशन नहीं छपेंगे, जो है हाँ
Money good, correct. चलो from this side now. It will oscillate. Good morning and welcome. I am Deepak, AGM from State Bank. We are having a very productive session. As such, we explained the typical concepts of financial like know-how, like money movement, digital arrest, journey of the money, banking, all those things. But we did explain, they are very informed audience as such. So now we are doing very basic thing. So we are oscillating with girls and boys. Yeah, okay. Sorry? Correct. So take pride that your name will be displayed in the Times of India newspaper, such a high class newspaper. Okay. Now this end. No repetition. No. Now let's start. You. She raised hand first. आपके बगल में. Correct. You will be getting chance. पर उसने पहले raise किया था. Only 3 questions on boys turn. Let's be democratic. एक बार इसका हो गया हाथ उठाओ. Raise your hand first. Already done with the chocolate already. No. Stand up. So by providing access to complex financial products. A. B, correct. Last two. To explain to you. अच्छा मैं क्वेश्चन आ गया था. अच्छा आपको पता है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बेसिक है. आगे बढ़ा. हाँ. लेडी टर्न है. बॉयज नंबर 2 है. सिक्योरिटी है. Last one with the boys. अपनी boys के लिए you call it. हाँ, next. Correct. Thank you everybody. You patiently giving me such a complex kind of preparation. अभी हमने simplify करने का प्रयास किया, but still finance is always heavy. So I believe it's helpful for you. Now I ask sir, if you want to take over the podium. Thank you so much for giving us a wonderful opportunity to organize such a wonderful event here in the most prestigious school of Prayagraj. When we read the academics, and the game stands tall. But when we scale values, moral values, ethics, we find
fantastic class of education and the values. As we have already discussed something related to value. Like money, you are very precious gems of India. Why this conference here in your school today? Just to understand the money, the value of money in better way. Like you are the valuable asset of Prayagraj, India, and India. Other than saving money, it is very important. Other than earning money, it is very important to utilize the money properly. आज के समय में अगर आप 1 रुपए का कॉइन या 5 रुपए का कॉइन जमीन पे पड़ा पाते हैं, do you pick it up? Most of the time नहीं उठाते. Every money has its value. आपके स्कूल के एक बच्चे का वैल्यू है बाहर. When you move out of school after जब छुट्टी खत्म, जब स्कूल ओवर होता है, when you move out, when you behave on the road, जब अपने आप कलीग्स को बुलाते हैं, कंधे पे हाथ रख के जोर से बुलाते हैं, the way you behave, you have been skilled, आपकी वैल्यू होती है, आपको मेजर करते हैं आप पब्लिक समाज. इसी तरह से हर एक वैसे ही every penny has its value. And being a student of commerce and humanities, we expect that you understand and will definitely have a lot of value. Understand the value and grow Indian economy. Indian students, especially, आपकी बहुत वैल्यू है across the world. And I'm with them, of course, as I said. I value, I mean it, and we value the class of education, the student, your discipline, your moral values. Thank you so much. With all these words, I will request Principal Ma'am to just receive a small honor from Times of India and SBI. Thank you, Amit sir, for your kind words, and thank you, Deepak sir. Your workshop was really, really innovative, and I'm sure all of us understand how important it is to save, plan, and manage money smartly. And I again thank you for such a wonderful and practical session, and I also thank Times of India for giving such a opportunity. Thank you so much. Mrs. Alvina Day, please stand and say something. Our minds always. And today I think this group of students sitting here has got the answers to many questions, and they are big enough to give such answers to their parents as well. So now they are almost on the verge of moving out of the school. They will be going out for professional colleges, higher education, and then everybody needs a bank account also. So they need to know the good things and how to be careful on saving their money. Because till now, you are not earning. Your parents are giving you the money and you are free to use it. But from now onwards, start developing the habit of saving a portion of your money so that in the future when you start earning, you will really understand the value of saving. It is very easy to insist to your parents to buy you expensive material goods. But now after some years, you will realize that when your father or your mother gives you an expensive gift, how much they must have saved before that to give you that. Most of you will be going for some professional colleges which require a lot of fees. Until now, your parents were in the habit of saving, so you can manage, you can afford to be in that expensive college. Remember children, for everything, when you value it at the right time, you get the true value of that thing when it is required. So thank you my dear students for being so patient. I know it was a little excited
also. Some of you were so excited answering the questions. And I could see some disappointment in some girls who kept on raising their hand, trying to give an answer. But if you have not got the opportunity to answer, at least you know the answer within yourself. Thank you so much. Pooja ma'am has been very helpful to us. Whenever your question paper comes, even if it's a holiday, Pooja ma'am makes sure to be in the bank to give the question papers of the board. So remember children, they have been an integral part of our school system. And if we are able to do things on time, conducting board examinations on time properly, they have been with us. So thank you so much. And Amit ji has chosen the right team, I suppose, for MPBM. Thank you once again.